हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो कैसे आप क्लास इंटरवल डिसाइड करते हैं एंड हाउ यू डिसाइड द नंबर फ्रॉम वेयर इट हैज़ टू स्टार्ट एंड द नंबर वेयर इट हैज़ टू एंड एंड देन यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. So this is the example which we were covering. So हमने इसमें class interval frame कर दिया था. Then we also had a look at the types of frequency distribution. Then now we come to the class midpoint. So अब आपने ये देख लिया है कि how to make a frequency distribution, कैसे आप range निकालते हैं, then how you calculate the width and in between you decide the number of classes, कितने class intervals रहेंगे, that is completely arbitrary. So अब हमारे पास जो next topic आता है that is called class midpoint. So class midpoint, the midpoint of each class interval is called the class midpoint and is sometimes referred to as class mark. So इसको class mark भी कहते हैं. ये मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का. सो इट इज द वैल्यू हाफ वे अक्रॉस द क्लास इंटरवल एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द टू क्लास एंड पॉइंट. सो कैसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख रहे हैं 1/3. सो डेफिनेशन में आपने देखा इट कैन बी कैलकुलेटेड एज एवरेज ऑफ द टू क्लास एंड पॉइंट्स. सो इसके एंड पॉइंट है 1 and 3. सो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इज 2. 3 + 5 divided by 2 average is 4. 5 + 7 that is 12 divided by 2 6. 7 + 9 that is 16 divided by 2 8. 9 + 11 that is 20 divided by 2 10, and 11 + 13 that is 24 divided by 2 that is 12. So this is how you calculate the class midpoint. So class midpoint, it is the midpoint of each class interval. So इसका मतलब 2 is the midpoint of this interval, 4 is the midpoint of this interval, 6 is the midpoint of this interval, and 8 is the midpoint of this interval. So this is how you calculate the class midpoint, and इसको हम class mark भी कहते हैं. So that sometimes it is also called class mark. Next हमारे पास आता है relative frequency. So relative frequency, as the name suggests, it is the proportion of the total frequency that is in any given class interval. So अगर क्लास इंटरवल 1 to 3 है, उसके में जो फ्रीक्वेंसी है उसका अगर हम प्रोपोर्शन करते हैं ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द इंडिविजुअल क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी. So कैसे करेंगे? Your class frequency is 4 divided by 60, that is your relative frequency. 12 divided by 60, that is your relative frequency. 13 divided by 60, that is the relative frequency. Similarly, 19 divided by 60, 7 divided by 60, and 5 divided by 60. So these are your relative frequency. Calculate कैसे करते हैं इसको? Individual frequency जो class interval की होती है उसको divide करते हैं total frequency से. So each class interval के लिए हम relative frequency निकालते हैं, जैसे आपने class midpoint निकाला था. And the last is cumulative frequency. The cumulative frequency is a running total of frequencies, running total. So you keep on adding the frequencies. So cumulative frequency is a running total of frequency through the classes of a frequency distribution. The cumulative frequency for each class interval is the frequency for that class interval added to the preceding cumulative total. So this is how you do 4. तो इसके लिए इसका cumulative would be 4. नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव वुड बी 12 + 4 दैट इज 16. नेक्स्ट के लिए जो 16 आया था डिवाइड प्लस 13 दैट इज 29. नेक्स्ट के लिए 29 + 19 दैट इज 48. 48 + 7 55 and 55 + 5 60. So total frequency, and this is the cumulative. So this is the cumulative of each individual frequency. So आप each individual class interval के लिए cumulative frequency निकालते हैं. Cumulative frequency को define कैसे करते हैं? It is the running total of frequency through the classes of frequency distribution. So frequency for that class added to the preceding cumulative total. So 12 was added to 14. Now 13 is added to the cumulative previous. Cumulative कितना है? 16. 13 + 16 29. This is how you calculate the cumulative frequency. So अभी तक हमने कवर करा डेटा ग्रुपिंग विच इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस. और डेटा एनालिसिस में पहले हमने डिस्क्राइब करा था डेटा को विद द हेल्प ऑफ 3 टेक्निक्स दैट वर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ शेप
एंड डेटा एनालिसिस में नाउ वी आर डूइंग डेटा ग्रुपिंग, जिसका पर्पस क्या है, एक अनग्रुप डेटा को कन्वर्ट करते हैं रॉ ग्रुप डेटा में, दैट इज एक रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं आप ग्रुप डेटा में। और उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टूल यूज करा है। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्रेम करते हैं, 3 नॉर्मल स्टेप्स हैं आपके, जिसमें पहले आप रेंज निकालते हैं, देन यू सेलेक्ट दी क्लासेस एंड देन यू कैलकुलेट दी विड्थ। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम calculating the frequency, you can also calculate cumulative frequency, relative frequency, and class midpoint. So the easiest ways to analyze data is to look at its distribution. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द विजुअलाइजेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करा है, उसका अगर हम एक विजुअलाइजेशन करें, सो दैट वुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन। सो अ डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल हम फॉर्म करते हैं, हाउ वी कैन प्रेजेंट इट। सो डेटा प्रेजेंटेशन वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक हम इसके एडिशन में दैट वुड बी डेटा प्रेजेंट हमें करना है, दैट इज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड इट वुड बी अ विजुअलाइजेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। So this is the assignment. So the problem is the following data are the average weekly mortgage interest rate for a 40-week period. So 40-week period के लिए जो जो interest rate थे वो आपको दे रखे हैं। So you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, तो 40 आपके पास नंबर्स हैं, 40-week पीरियड के इंटरेस्ट रेट्स हैं ये। सो यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दीज डेटा। So now you have to make a distribution, frequency distribution, and calculate and display class midpoint. सो पहले आप सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे, अपना कैलकुलेट करेंगे रेंज, देन नंबर ऑफ क्लासेस, देन विड्थ, देन क्लास इंटरवल आप फ्रेम करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो कैलकुलेट क्लास मिड पॉइंट फॉर ईच इंटरवल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच इंटरवल। सो इसको आप कंप्लीट करेंगे एंड यू वुड ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अ रजिस्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, एंड एक रजिस्टर आप बनाएंगे, उसमें यू वुड कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स एंड ये दिस इज द असाइनमेंट 1। और इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम दी थी आपको, एक क्वेश्चन दिया था। सो यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट क्वेश्चंस। सो उसको आप कंप्लीट करेंगे उस क्वेश्चन को, एंड देन वन क्वेश्चन वाज देयर एंड दिस इज द असाइनमेंट 1। सो इसको आप कंप्लीट करेंगे उस रजिस्टर में, देन यू वुड टेक पिक्चर ऑफ योर असाइनमेंट एंड प्रॉब्लम एंड उसको कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में, एंड देन डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है, उस लिंक में यू कैन अपलोड योर पीडीएफ। सो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में आप यू वुड सॉल्व योर असाइनमेंट 1 एंड आल्सो द प्रॉब्लम व्हिच वाज गिवन टू यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियोस, एंड दोनों को सॉल्व करेंगे, देन यू वुड टेक द पिक्चर एंड कन्वर्ट इनटू पीडीएफ एंड देन अपलोड इट ऑन द लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को एंड प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वुड बी डेटा प्रेजेंटेशन, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू यू आर फेसिंग, यू कैन लेट मी नो। थैंक यू सो